यहाँ चलाओ। Assalamu alaikum. Welcome to my channel, class 11th, commerce. We start fundamental accounting assumption or concept. First, going concern concept or assumption. Assume that business will continue for a foreseeable future at the same level of operation. गोइंग कंसर्न एजम्पशन में ये मान कर के चलते हैं कि बिजनेस हमारा रहेगा, इवन इंसान की लाइफ भी खत्म हो जाए लेकिन हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। एग्जाम्पल, कोई मशीनरी परचेज करते हैं 1,10,000 का, उसकी रेसिड्यूल वैल्यू 10,000 और एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है 10 ईयर। 1 लाख रिटर्न ऑफ करेंगे नेक्स्ट 10 ईयर में, तो डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ईच ईयर कितना, फिर 1,10,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड इन एंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो 1,10,000 एज एन एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। According to consistency assumption, accounting practice once selected and adopted should be applied consistently year after year. कंसिस्टेंसी एजम्पशन में अगर हम कोई मेथड चूज कर लेते हैं तो उसको सालों साल वही अप्लाई करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम डेप्रिसिएशन को रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड सेलेक्ट किया तो उसी को कॉन्टिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर उसी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। नेक्स्ट, एक्रूअल एजम्पशन। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल एजम्पशन, a transaction is recorded in the book of account at the time when it is entered into and not when the settlement take place. एक्रूअल में है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट, जब इंटर करते हैं तो उसी को मानते सेटलमेंट कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सेल्स किए हमने 27 फरवरी 2026 को ऑन क्रेडिट 15,000 के 2 मंथ के लिए, और सेल को इसको रिकॉर्ड कब करेंगे 27 फरवरी 2026 को, पर द अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन 27 अप्रैल 2026। हमने अमाउंट रिसीव किया 2026 में, लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे 27 फरवरी 2026। इट्स दैट क्लियर? नेक्स्ट, solve some questions. Assets except securities may be valued under Indian accounting standard on first historical cost, second fair value, third both historical cost and fair value, fourth none of these. So assets except securities may be valued under Indian accounting standard on historical cost. Question number second. Indian accounting standards are: first, rule-based accounting standard; second, principle-based accounting standards; third, none of the above; fourth, partially rule-based and partially principle-based accounting standards. Correct answer is Indian accounting standard are
principle based accounting standards. Question number third. According to the money measurement concept, all transactions and events which can be estimated in the monetary term are recorded in the book of account. Second, all transactions and events which can be measured in money terms are recorded in the books of account. Third, none of the above. Fourth, all transactions and events are recorded. Correct answer. According to the money measurement concept, all transaction and event which can be measured in money terms are recorded in the book of account. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो भी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करेंगे, और सब नहीं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन ये सब नहीं रिकॉर्ड होगा, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. Question number fourth. A concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as going concern, economic entity, money measurement, none of these. A concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in near future is known as going concern. गोइंग कंसर्न में मान करके चलते हैं हमारा बिजनेस चलता रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इनफाइनाइट है, इवन इंसान की लाइफ भी खत्म हो जाए लेकिन हमारा बिजनेस रहेगा. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Which of these is not fundamental accounting assumption? Consistency, business entity, accrual, going concern. तो right answer is business entity. Question number fifth. X Limited follow the written down value method of depreciating machinery year after year due to convenience, consistency, comparability, all of these. Right answer is consistency. X Limited follow the written down value method of depreciating machinery year after year due to consistency. हम एक ही मेथड अप्लाई करते हैं, इवन स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन. अगर हमने रिटर्न डाउन मेथड अप्लाई किया तो हर साल वही अप्लाई करेंगे, यही है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में. नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट, डेबिट means is left side of an account and credit is the right side of an account. बुक का लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन. अब देखते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल में है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट्स में है रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट. अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या है. पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. एग्जाम्पल, बैंक कैपिटल है, ड्राइंग है, प्रीपेड रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट्स. सेकंड, रियल अकाउंट. रियल debit what comes in and credit what goes out.
जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जा रहा है वो क्रेडिट होगा। कैश क्या है? रियल अकाउंट, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? रियल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सेल्स एग्जाम्पल के तौर पे परचेज, इंटरेस्ट पेड, बैड डेट रिटर्न ऑफ्स, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स में। थैंक यू सो मच।